Assalamualaikum dear class. Today we will discuss the invertebrate nervous system. As we have studied about nervous system, about the brain, about the different helping synapses, neurons. These are the things that are involved in the nervous system and to transmit impulses in different way. So there are two types of nervous system. We deal with the vertebrate nervous system and the invertebrate nervous system. The difference basically between the invertebrates and vertebrates is the presence of the spinal cord that is present in the vertebrates and not in the case of invertebrates. But nervous system is also developed in case of invertebrates. So first we will see about the nervous system of invertebrates. Then we will share some things about the vertebrates of nervous system of vertebrates. So if we see the composition of our nervous system, there are different types of neurons, glia, and the other synapses and the sensory interneurons, motor neurons. So first we see, as we have already seen, that what are the neurons and what are the synapses. So the nervous system consists two types of cells, neurons and the supporting cells. Neurons are the specialized cells that transmit chemical and electrical signals from one location to another site, while the supporting cells that are also called glia, they are structurally reinforced, protect, insulate, and generally assist the neurons that are the actually the basic structural and functional component of the neuron nervous system. So, if you see the components of a nervous system can be thought of as an organized collection of neurons that interact at point of contact called synapse. We have seen already these things that neurons are interconnected through the synapses, and synapses are the points where the membranes of the two or more neurons come very close together, associated with the specialized feature of the membrane. So, three major classes of neurons are there that are the sensory neurons, interneurons, and the motor neurons. The sensory neurons, their function is to convey information about the external and internal environment from the sensory receptor to the CNS. मोर synapse with the interneuron यानी कि जो हमारे स्टिमुलस को कैरी करेंगी और उसको ब्रेन तक लेके जाएंगी. These neurons will be the sensory neurons. Interneurons are, as the name shows, they are the in between the sensory and the motor neurons. They integrate sensory input and motor input and locate within the CNS. Interneurons का काम क्या है कि CNS के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और इंटीग्रेट कर रही होती है between sensory and motor neurons को. They synapse only with the other neurons. Motor neurons, these are the neurons that convey impulse from the central nervous system to the affector cells. यानी कि जिस तरह हमारे स्टिमुलस हमारी बॉडी को आई है टेम्परेचर के बारे में या किसी भी और तरह से, तो जो मोटर न्यूरॉन यानी जो हमारे मोटर रिफ्लेक्सेस आएंगी उसको CNS इंटीग्रेशन के बाद, तो वो मोटर न्यूरॉन उन इम्पल्सेस को लेके जाएगी हमारे अफेक्टर ऑर्गन फाइनली फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Three overlapping functions of the nervous system are sensory input, integration and motor output. जिस तरह से न्यूरॉन्स हैं उसी तरह से उनके फंक्शन है. जैसे कि हम सेंसरी इनपुट की बात करेंगे तो इट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. इंटीग्रेशन सेंटर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी जो हमारे पास मैसेज पहुंचा उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, उसको समझना है ताकि मोटर न्यूरॉन या फैक्टर ऑर्गन्स तक अपना पैगाम पहुंचाया जाए. तो सेंसरी इनपुट क्या होती है कि स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना. और इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इज इंटरप्रेटेड एसोसिएटेड विद द appropriate response of the body, that will be the integration. एंड मोटर आउटपुट ये है कि अफेक्टर ऑर्गन्स तक मैसेज को लेके जाना कि वो अफेक्टर ऑर्गन चाहे वो मसल हो चाहे वो ग्लैंड्स हो. अगर मसल्स हैं तो मूवमेंट टाइप को ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और अगर ग्लैंड्स हैं तो सिक्रीशंस जो है वो एक्सक्रीट होंगी. तो ये चीजें ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मोटर आउटपुट क्या है, इट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द अफेक्टर सेल दैट एक्चुअली कैरी आउट द बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. सिग्नल्स आर कंडक्टेड बाय द नर्व्स विद मेनी एक्सॉन्स. ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्सॉन्स के थ्रू ये काम होता है, कमिंग फ्रॉम मेनी डिफरेंट न्यूरॉन्स सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू दी फाउंड इन बोथ पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह से बना होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है
और they are the responsible for integration of sensory input and associating stimuli with the appropriate motor output. ये तो CNS का काम है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का. While the peripheral nervous system consists of a network of nerves extending into different parts of the body. दिमाग के अंदर अंदर जो काम हो रहा है वो CNS है, और पूरी बॉडी में जो अपने मैसेज को लाना और फिर लेके जाना, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा अदर देन ब्रेन, जो हमारा अदर देन ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. अच्छा, नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स ऑफ निडेरियंस. अच्छा, यहाँ हमने इनवर्टिब्रेट्स में देखना है कि इनवर्टिब्रेट्स में किस तरह से नर्वस सिस्टम अपना काम करते हैं. निडेरियंस की क्लास है. निडेरियंस हैव अ डिफ्यूज्ड नॉन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. यहाँ से नर्वस सिस्टम का बेसिकली आगाज हो रहा है, लेकिन इनका नॉन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, नोन एज ए नर्व नेट. यहाँ पे इसको नर्व नेट कहते हैं. दिस फाइलम इज द फर्स्ट इन विच द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरीली इज अंडर नर्वस कंट्रोल. यानी कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम का आगाज हो रहा है कि नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन डील हो रही है, यानी कि नर्व्स के थ्रू मैसेज आएगा, देन मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड. द नर्व नेट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम को नर्व नेट का नाम दे रहे हैं. नर्व नेट कंसिस्ट ऑफ टू मेन नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग नर्व सेल्स, वन लोकेटिंग इन द एपिडर्मल लेयर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वन इन द गैस्ट्रोडर्मल लेयर. जिस तरह से यहाँ से आपको इसके ये नर्वस सिस्टम ऑफ निडेरियंस नजर भी आ रहे हैं, एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ निडेरियंस नजर आ रहे हैं कि ये इनका माउथ है, फिर इनके स्फिंक्टर मसल्स हैं, इसी तरह ये रेडियल कैनाल है, लेकिन ये आपको नर्व नेट नजर आ रहा है. ये नेटवर्क की तरह बिछा होता है, इसीलिए हम इसको नर्व नेट कहते हैं. ठीक है, और इसमें ये आउटर नर्व रिंग भी नजर आ रहा है, इसके अलावा इनर नर्व रिंग नजर आ रहा है. तो ये चीजें जो है वो नर्व नेट, जिस तरह से ये दूसरी साइड में भी आपको यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व नजर आ रहा है, तो दिस विल डील दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. Most nerve conduction is non-polar. That is, the impulse is sent in both directions at once. ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड पे डायरेक्शन पे जाएगी स्टिमुलस आई और उसी साइड पे मूव करेगा, ये ऑल ओवर द बॉडी मूव करेगा. स्टिमुलस मे स्प्रेड द नर्व इम्पल्स इन एवरी डायरेक्शन थ्रू आउट द बॉडी. इनकी बॉडी का, जिस तरह से हम अपने वर्टिब्रेट्स में देखें कि अगर हमें कोई सिग्नल मिला है, हमारा राइट हैंड मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली सिग्नल मूव कर रहा है. लेकिन जो नर्व नेट के थ्रू सिग्नल्स निडेरियंस के अंदर मूव करते हैं, वो ऑल ओवर द बॉडी सिग्नल का जो है वो रिस्पॉन्स जाता है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो ऑल ओवर द बॉडी जाता है. इसी के निडेरियंस की एक टाइप है मेडुसा. तो मेडुसा के अंदर एपिडर्मल नर्व नेट इज कंसंट्रेटेड इनटू द टू नर्व रिंग्स, जैसे भी हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा, near the bell perimeter. These connect with the fibers innervating the tentacles, muscles and sense organs to facilitate movement. यहाँ पे जो मूवमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं टेंटिकल्स हैं, उनके मसल्स हैं और सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो इन चीज़ों को नर्व नेट अपना सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और ये टू टाइप्स के नर्व रिंग्स यहाँ पर होते हैं जो ये रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं. The nervous system and the sense organs of medusa are more complex than those of the polyps. Statocysts and the are distributed around the bell parameter. ये स्टेटोसिस्ट जो होते हैं स्पेशल टाइप्स के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं. तो स्टेटोसिस्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर ओरिएंटेशन का काम करते हैं, कि उनकी ओरिएंटेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कि जो इनवर्टिब्रेट्स वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये स्मॉल ऑर्गन ऑफ बैलेंस और ओरिएंटेशन इन सब aquatic invertebrates इज डील बाय द स्टेटोसिस्ट. Chemoreceptors and ocelli are also distributed around the body. Some medusa have well-developed eyes with a cornea, retina and lens. ये भी यहाँ पर इनके प्रेजेंट होते हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहे होते हैं. अब देखेंगे हम नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ टीनोफोरा. अब ये टीनोफोरा जो है वो नेक्स्ट अनदर वेल डेवलप्ड नर्व नेट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है,
or similar to that of cnidarians. The main network of interlocking nerve cells is located beneath each com plate. जिस तरह हमने देखा कि नर्व रिंग वहाँ पे प्रेजेंट है और नर्व नेट प्रेजेंट होता है निडारियंस के अंदर, तो यहाँ पे तीनों फोरा जो है यहाँ पे इंटरलॉकिंग नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कॉम प्लेट के नीचे। अभी हम नेक्स्ट इसकी पिक्चर देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। द सेंस ऑर्गन्स आर सिमिलर टू फाउंड इन द मेडुसॉइड निडारियंस। एंड यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो कॉम प्लेट है इनकी, कॉम प्लेट के बीनीथ यहाँ पर इनके नर्व जो है वो इंटरलॉकिंग नर्व प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखें तो एपिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो ऊपर वाली साइड है उनकी वहाँ पे प्रेजेंट है। टेंटिकल्स हैं जो कि मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। टेंटेकुलर शीथ है, ये फेरिंग्स है। एंड देन देयर इज अ कॉम्प्लेट एंड बिलो दिस द nerve interlocking nerves are present. Then we move forward towards the nervous system and sense organs of platyhelminthes. The flatworm nervous system is composed of pairs of longitudinal nerve cord with ladder-like cross connections. The brain is mass of ganglion cells located at the anterior end of the animal. अब यहाँ पे properly जो है वो इनका brain develop होना start हो रहा है, जो कि mass of ganglion cells हैं, यानी कुछ cells हैं जो आपस में एक जगह पे present हैं इकट्ठे, तो उनको हम गैंग्लियन सेल्स कहते हैं और वो एंटीरियर एंड ऑफ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्लेटफॉर्म्स हैव सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फीचर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ना ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं जहाँ पे सेंसरी मोटर एंड एसोसिएटिव नर्व जो है प्रेजेंट है या न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इससे पहले जो है वो इंटरलॉकिंग नर्व सिस्टम है, ये नर्व नेट सिस्टम है। तो ये प्लेटीहेल्मिंथेस में प्रॉपरली सबसे पहले सेंसरी मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। रिबन वर्म्स जिनको हम ये रिबन वर्म्स भी प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एग्जिबिट है हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन देन द फ्लैटवर्म्स। इनको हम निमल्टिया भी कहते हैं, रिबन वर्म्स को। और नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेरिब्रल गैंग्लिया। इम्पल्सेस आर कैरिड बाय लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड with the ladder like cross connections, and ribbon worm possess a variety of sensory receptors similar to those found in the flatworms. Almost इनका सेम ही पैटर्न प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम का, जैसे कि फ्लैटवर्म के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ इनमें स्पेशलाइजेशन जो है वो इनमें ग्रेटर डिग्री की है एज कंपेयर टू द प्लेटीहेल्मिंथेस या फ्लैटवर्म। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथेस में ये फर्स्ट टाइम जो है प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर है कि इनका प्रॉपरली एंटीरियर एंड के ऊपर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर हमें ये स्टेटोसाइट्स जो है जो कि ओरिएंटेशन का रोल प्ले करते हैं वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ब्रेन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करती हैं। इसी तरह हमें इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे इनका ये आई स्पॉट्स भी इनमें प्रॉपर प्रेजेंट है। ये फर्स्ट टाइम है कि आईज की डेवलपमेंट हुई है। और सेरिब्रल गैंग्लिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ट्रांसवर्स नर्व्स हैं, ये भी यहाँ पे सारा हमारा नर्वस सिस्टम का जो रोल है वो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है आपको। फिर फ्लेम सेल्स, ये डिफरेंट उनके बॉडी सेल्स हैं, लेकिन जो नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्व्स का एक पूरा जाल भी नजर आ रहा है और ट्रांसफर नर्व भी नजर आ रही हैं। Eye spots and cerebral ganglia or longitudinal nerve cord is also present in this picture. Here is another type of platyhelminthes. So here we can also see that यहाँ पर भी हमें central nervous system जो है वो उसका development जो है वो होती हुई नजर आ रही है as compared to the previous types of animals. Flatworms have several type of specialized sense organs. These are the chemoreceptors, ocelli, stratocytes, and tactile receptors. So the chemoreceptors are used for the locating foods,
Oculi and stratocytes and the uh, rheoreceptors, which sense water current, are distributed over the body surface of antibralians, and the tactile receptor are found all over the body of the tubularians, on the suckers of flukes and on the scolex of tapeworms. यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि अपना सेंस करने का रोल प्ले कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को। तो यहाँ पे ओसिलाई रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट, ट्रियो रिसेप्टर्स जो कि वाटर करंट को फील करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स जो कि फूड को फाउंड करने के लिए यूज होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर जो कि टच टच वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है फर्स्ट टाइम इन दी प्लेटफॉर्म्स। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दी सीडो सेलमेट की तरफ हम जा रहे हैं। दी सेरिब्रल गैंग्लिया फ्रॉम ए रिंग अराउंड द एसोफेगस, यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है। सेवरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स ओरिजिनेट इन द एसोफेजल nerve ring and run the length of the body, and the major nerve cord is ventral and includes both motor and sensory neurons are present here. The dorsal nerve cord contains only motor nerves, and the lateral nerves primarily are sensory nerves. Nervous system and nervous system of this type of animals like nematodes have numerous sensory receptors distributed along the body. Tactile information is critical to nematodes because most species inhabits and testitial spaces or are endoparasites, so chemosensory receptors are also abundant here. एंडोपैरासाइट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये मोस्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए, लाइक एंडोपैरासाइट्स एंड लाइक ये किसी और एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग की जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके वहां से अपनी फूड ले रहे होते हैं, तो इनके लिए टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नीमाटोड्स के अंदर। इन रोटीफर्स द सेरेब्रल गैंग्लिया आर लोकेटेड इंटीरियर टू द मैस्ट्रैक्स। मेस्टेक्स जो है वो बेसिकली एक च्यूइंग ऑर्गन होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है रोटी पर्स के अंदर। तो रोटी पर्स के सेरेब्रल गैंग्लिया जो है वो लोकेटेड एंटीरियर टू द मेस्टेक्स एंड सेवरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक राइज फ्रॉम द ganglia. Both main tracts may lie ventrally or one may lie dorsally and one ventrally depending on the species. ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो मेन ट्रैक्स हैं वो दोनों वेंट्रली मूव कर रहे हैं या उनमें से कोई एक वेंट्रली और कोई एक डॉर्सल मूव कर होता है। डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब कि वो उनकी जो चपटी साइड है उसके ऊपर या उसके नीचे वाली जो साइड है उसको हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड कहते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ सेवरल टाइप्स are distributed over the body surfaces. नेक्स्ट हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं तो इसके अंदर हमारी ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर हमारा प्रॉपर जो है वो यहाँ पे सीडोसीलमेट्स जो होते हैं इनके अंदर प्रॉपरली ब्रेन प्रेजेंट होता है, आई भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो नर्व कॉर्ड मूव कर रही है, ये भी यहाँ पे नर्वस सिस्टम का हेल्पिंग रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे नोटो कॉर्ड भी प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे नोस्ट्रिल्स, ये उसका ओरल हुड है, पहले मेंडोसाइट्स है, फिर इंजल बार है, हार्ट, लिवर। तो प्रॉपर ऑर्गन डेवलपमेंट जो है उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। ये देखें, ये इनका ये जो मैस्टैक्स का पोर्शन है बिल्कुल इसके ऊपर सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये सेरिब्रल गैंग्लियन जो है ये नर्वस सिस्टम का रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो है मोलस्का, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जो मोलस्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है कि इन मोस्ट मोलस्क द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लार्ज गैंग्लिया रिंग अराउंड द
digestive tract at the anterior end of the body, and two pairs of longitudinal nerve cord arise from these anterior ganglia, and the nerve cord are located ventrally and have ladder like cross connections similar to the platform जैसे भी हमने पहले देखा था. तो cephalopods have the highest nervous system development of all invertebrates, and the most of the ganglia in the cephalopods are located at the extreme anterior end of the animal, and the ganglia interconnect into lobes of a large brain, and a large optic nerve extend to each eye. Cephalopods have excellent vision comparable to that of the vertebrates. Swallows have a large behavioral repertoire and are excellent learners, and they have well developed rapid escape behaviors. They have extensive mimicking and camouflage abilities, and they can master complex memory dependent टास्क. तो ये हम देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम का भी इनके अंदर डेवलपमेंट और इनके अंदर समझने की, सोचने की, प्लानिंग की, ये सारी एबिलिटीज जो है वो मोलस्का के अंदर स्टार्ट हो गई हैं, जिनमें स्फेलोपोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड mollusk possess a wide variety of sensory receptors. जिस तरह इसमें sensory tentacles हैं, photoreceptors हैं, इसके अलावा patches of chemosensory epithelium called osphadia are found on the gills. Chemosensors also are located elsewhere, located on the body. Some species use a form of chemical interspecific communication, and cytosites and geomagnetic sensors may also be present here. ठीक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट इसकी टाइप्स जो है वो दिखाई हुई है स्फेलोपोड की. कोलियोइड स्फेलोपोड है और बेसल स्फेलोपोड जो है, इन दोनों की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिखाई हुई है कि यहाँ पे इनका सेरेब्रल कॉर्ड है और ऑप्टिक लोब है और आई इनकी दिखाई हुई है, फिर उसमें विसरल कॉर्ड है. इसके अलावा इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर्स दिखाए हुए हैं. नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ मोलस्क की अलग पिक्चर फर्दर आपको इलेबोरेट करके दिखाई हुई, जिसमें स्फेलोपोड, ये स्फेलोपोड की है जिसके अंदर एक एग्जांपल आपको दी हुई है जो कि यू प्रेमना की है. इसी तरह अदर टाइप्स की एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे कोट किए गए हैं. Then we are moving towards the nervous system and sense organs of Annelida. Annelida, the nervous system of annelids is similar in basic structure to the ladder, like system of flatworms. सब में flatworm से onward जितने भी आ रहे हैं सब में mostly ladder type system है, and is more centralized and has longitudinal nerve cord. And the basic nervous system plan is consist of a pair of dorsal cerebral ganglia at the anterior end and one or more ventral longitudinal nerve cord by a connective rim that encircle the foregut region. Annelids have well-developed sensory receptors. Polysheaths have a variety of tactile photoreceptors and chemoreceptors are present here. And the most burrowing and tube-dwelling forms have statocysts and georeceptors that enable them to orient themselves in the substrate. Oligochaetes have epithelial sense organs distributed all over the body of these sensory extremely sensitive tactile and chemoreceptors. ये जो ओलिगोशीट्स हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है वो होते हैं ये हमारे अर्थवर्म्स होते हैं. सिमिलरली ये जो ओलिगोशीट्स हैं इसी तरह से अर्थवर्म होते हैं. इनका सेंसरी ऑर्गन जो है वो एपिथेलियल सेंस ऑर्गन इनमें होते हैं जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टैक्टाइल एंड कीमोरिसेप्टर्स में. फिर इसके अलावा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिलिडा जो है उसके अंदर हम नेक्स्ट जो टाइप पढ़ रहे हैं उसको हम Hirudinians have the least complex sensory receptors और इनके बड़े सिंपल से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनमें लार्ज एरे ऑफ एपिडर्मल सेंस ऑर्गन्स हैं. ये बिल्कुल ऐसी होती हैं जिस तरह से ये जो जोंके होते हैं ये हेरोडिनियंस होते हैं. एंड सिमिलर टू दोज ऑफ द ओलिगोशीट्स इंक्लूडिंग वाइब्रेशन एंड tactile receptors are present here, and they may have 2 to 10 simple eyes. Most leeches are negatively phototactic and that tend to avoid light. ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं एंथ्रोपोडा की तरफ. जनरल प्लान फॉर द एंथ्रोपोडा nervous system is similar to that of the found in annelids, and two or the three separate but closely connected
Dorsal ganglia are located in the anterior head region. ठीक है, the ventral nerve cord may be single or double with segmental ganglia connecting nerve cord encircle the esophagus, and the sensory receptor are complex and well developed here. Most are modification of the exoskeleton which would otherwise block all sensory input. Extensions of the cuticle function as tactile and chemical receptors, statocysts and sound receptors are also present here. Anthropodi will be simple ocelli or with or without a lens compound. भी हो सकती है, simple भी हो सकती है. Some insects may have as many as 30,000 ommatidia in their compound eyes. Most species are have either light or dark adapted eyes and lack of the ability to adjust their vision to different light conditions. Nervous system and sense organs of anthropod and nervous system of the आर्थ्रोपोड जो है ग्रास हॉपर का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर जो है नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा देखते हैं. इस फाइलम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम इज नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड cerebral ganglia are absent. There are three main nerve networks. Each network consists of nerve ring with radial branching off into the disc and arms, and a network connected by an epidermal nerve net. And sensory receptors are simple here. Ocelli are located at the tip of the arm, and sensory neurons in the epidermis are sensitive to touch, chemical, water, करंट एंड लाइट. ठीक है, ये स्टार फिश जो है इसकी एग्जांपल में आपको दिखाई हुई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फाइलम्स and how the central nervous system is developed in these phylums. If we summarize all over presentation, then we see that first we have seen about the nervous system and different neurons and synapses and different types of neurons, and then we started from the cnidarians, and that is the phylum. The first phylum in which the proper nervous system is started. After that, these cnidarians are also called coelenterata, and after coelenterata we have seen the Ctenophora and after Ctenophora platyhelminthes, and in the platyhelminthes the proper system is of chemoreceptors is started. Then pseudocoelmates we have seen, and after that we have seen about the mollusca phylum, and then we have seen about the annelida, and after annelida we have seen the anthropod. एंड एंथ्रोपोड के बाद हमने इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखा कि किस तरह से जो है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हुई. सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू पीपल कि आपने इन सब फाइलम्स को अरेंज करके और इन सब का नर्वस सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो एक ही जगह पर ड्रॉ करके अपने नोटबुक के अंदर लिखने हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए.